Brightburn is a 2019 American superhero horror film directed by David Yarovesky, written by Brian and Mark Gunn, and produced by James Gunn and Kenneth Wang. Starring Elizabeth Banks, David Denman, Jackson A. Dunn, Matt Jones and Meredith Hagner. The plot follows Brandon Breyer, a young boy of extraterrestrial origin reared on Earth who discovers he has superpowers, using them with dark intentions. The film was produced and financed by Screen Gems, Stage 6 Films, The H Collective and Troll Court Entertainment. Brightburn was announced as Untitled James Gunn Horror Project in December 2017. Gunn produced the film, while his brother Brian and cousin Mark penned the screenplay which adapts the concept of Superman for explicit horror. Principal photography began in March 2018 and wrapped in May of that same year. Brightburn was released in the United States on May 24, 2019 by Sony Pictures Releasing. The film received mixed reviews from critics, who praised the horror elements, gore concept, and Banks' performance, but criticized its writing and pacing and felt that the film did not deliver on the full potential of its premise. The film grossed $32.9 million against a production budget of $-12 million. In 2006, a spaceship crashes in a forest in Brightburn, Kansas. Tori and Kyle Breyer, a couple who are unable to conceive, see an explosion from their house and go to the crash site. There, they find a spaceship with a baby inside, whom they adopt and name Brandon. They also hide the spaceship in their barn. Around Brandon's 12th birthday, he discovers he has exceptional strength and the ability to fly. His disposition also changes, from a sweet child to having anger issues. In middle school, Brandon is an academically exceptional student but socially awkward and frequently bullied. Classmate Caitlin Connor shows sympathy for him. Brandon develops a crush and stalks Caitlin in her room in the middle of the night, scaring her. One day, during a trust exercise in physical education class, Brandon falls towards Caitlin but she lets him drop to the ground and calls him a pervert. Angered by her accusation, Brandon crushes her hand and is suspended from school after being accosted by Caitlin's mother, Erica. That night, Brandon sleepwalks to the spaceship and breaks into the barn where it is hidden, cutting his hand on the ship. Tori follows and sees him levitating, chanting the ship's message, "Take the world." She reveals the truth of his origin, and Brandon angrily trashes the house and later kills Erica. Police find symbols drawn on a window while investigating Erica's disappearance, the same symbols that Brandon is seen drawing in his notebook. The next day, Brandon dons his costume and is caught sneaking into his aunt and uncle's house by his uncle, Noah. After Noah threatens to tell his father, Brandon kills him. The following morning, Tori and Kyle inform Brandon of Noah's death, which the police believe was an accident, but Brandon shows no emotion. Suspecting him to be the killer, Kyle finds Brandon's blood-stained shirt and shows it to Tori, but she refuses to believe it. Kyle takes Brandon on a father-son hunting trip in the woods. He attempts to shoot and kill Brandon with his hunting rifle, but the bullet bounces off the back of Brandon's head. Brandon then kills Kyle with heat vision. A sheriff arrives at the Breyers and shows Tori the symbol found at the scenes of Erica's and Noah's deaths. Tori finds Brandon's notebook with drawings of his murders, the same symbol that the sheriff found at both murders, and his message to "Take the world." She calls Kyle, but Brandon answers and implies he is coming for her. Brandon returns and begins destroying the house. Tori calls 911, but Brandon kills the sheriff and his deputy before backup can arrive. Remembering that the ship's hull can cut him, Tori runs to the barn and discovers Erica's eviscerated body. As Brandon pursues her, Tori tries to stab him with a piece of the ship, but he grabs her and flies her into the sky to drop her from several thousand feet to her death. After he watches her fall, he looks up to see an oncoming airplane. The following morning, the airplane is revealed to have crashed into the farmhouse, destroying the evidence of the murders from the previous night. Brandon's symbol is seen painted on a piece of the plane wreckage. In a mid-credits scene, Brandon, now identified as Brightburn, is seen from the perspective of news reports and eyewitness footage over the locations of various disasters. An online conspiracy theorist posts his own video analyzing the disasters and referencing attacks by other cryptids elsewhere in the world, urging the public to recognize the potential danger these beings pose and to take action before it's too late. ब्राइटबर्न डेविड यारोवेस्की द्वारा निर्देशित, ब्रायन और मार्क गन द्वारा लिखित और जेम्स गन और केनेथ हुआंग द्वारा निर्मित 2019 की अमेरिकी सुपरहीरो हॉरर फिल्म है। इसमें एलिजाबेथ बैंक्स, डेविड डेनमैन, जैक्सन ए.
डन, मैट जोन्स और मेरेडिथ हेगन ने अभिनय किया है। कथानक ब्रैंडन ब्रेयर पर आधारित है, जो पृथ्वी पर पला बड़ा एक अलौकिक मूल का युवा लड़का है, जिसे पता चलता है कि उसके पास महाशक्तियां हैं, जिसका वह अंधेरे इरादों के साथ उपयोग करता है। फिल्म का निर्माण और वित्तपोषण स्क्रीन जेम्स स्टेज 6 फिल्म्स, द एज कलेक्टिव और ट्रोल कोर्ट एंटरटेनमेंट द्वारा किया गया था। ब्राइडबर्न को दिसंबर 2017 में अनटाइटल्ड जेम्स गन हॉरर प्रोजेक्ट के रूप में घोषित किया गया था। गन ने फिल्म का निर्माण किया, जबकि उनके भाई ब्रायन और चचेरे भाई मार्क ने पटकथा लिखी, जो स्पष्ट हॉरर के लिए सुपरमैन की अवधारणा को अपनाती है। मुख्य फोटोग्राफी मार्च 2018 में शुरू हुई और उसी वर्ष मई में समाप्त हुई। ब्राइडबर्न को संयुक्त राज्य अमेरिका में 24 मई 2019 को सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग द्वारा रिलीज किया गया था। फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली, जिन्होंने हॉरर तत्वों, रक्तपात, अवधारणा और बैंक्स के प्रदर्शन की प्रशंसा की, लेकिन इसके लेखन और गति की आलोचना की और महसूस किया कि फिल्म अपने आधार की पूरी क्षमता को पूरा नहीं कर पाए। फिल्म ने $6-12 मिलियन के उत्पादन बजट के मुकाबले $32.90 मिलियन की कमाई की। 2006 में ब्राइडबर्न कैंसस के एक जंगल में एक अंतरिक्ष यान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। टोरी और काइल ब्रेयर, एक जोड़ा जो गर्भधारण करने में असमर्थ हैं, अपने घर से एक विस्फोट देखते हैं और दुर्घटना स्थल पर जाते हैं। वहां उन्हें एक अंतरिक्ष यान मिलता है जिसके अंदर एक बच्चा होता है, जिसे वे गोद लेते हैं और ब्रैंडन नाम देते हैं। वे अंतरिक्ष यान को अपने खलिहान में भी छिपाते हैं। ब्रैंडन के 12वें जन्मदिन के आसपास उसे पता चलता है कि उसके पास असाधारण ताकत और उड़ने की क्षमता है। उसका स्वभाव भी बदल जाता है, एक प्यारे बच्चे से लेकर गुस्से की समस्या तक। मध्य विद्यालय में ब्रैंडन एक अकादमिक रूप से असाधारण छात्र है, लेकिन सामाजिक रूप से अजीब और अक्सर तंग किया जाता है। सहपाठी कैटलिन कोना उसके प्रति सहानुभूति दिखाती है। ब्रैंडन को कैटलिन पर क्रश हो जाता है और वह आधी रात को उसके कमरे में घुसकर उसे डराता है। एक दिन फिजिकल एजुकेशन क्लास में ट्रस्ट एक्सरसाइज के दौरान ब्रैंडन कैटलिन की तरफ गिरता है, लेकिन वह उसे जमीन पर गिरा देती है और उसे विकृत कहती है। उसके आरोप से क्रोधित होकर ब्रैंडन उसका हाथ कुचल देता है और कैटलिन की मां एरिका द्वारा उसे परेशान किए जाने के बाद उसे स्कूल से निलंबित कर दिया जाता है। उस रात ब्रैंडन नींद में अंतरिक्ष यान तक जाता है और उस खलिहान में घुस जाता है जहां वह छिपा हुआ है, और जहाज पर अपना हाथ काट लेता है। टोरी उसका पीछा करती है और उससे जहाज का संदेश जपते हुए उड़ते हुए देखती है, दुनिया को ले लो। वह उसकी उत्पत्ति का सच बताती है और ब्रैंडन गुस्से में घर को तहस नहस कर देता है और बाद में एरिका को मार देता है। एरिका के लापता होने की जांच करते समय पुलिस को एक खिड़की पर बने प्रतीक मिलते हैं, वही प्रतीक जो ब्रैंडन अपनी नोटबुक में बनाता हुआ दिखाई देता है। अगले दिन ब्रैंडन अपनी पोशाक पहनता है और अपने चाचा नूह द्वारा अपनी चाची और चाचा के घर में घुसते हुए पकड़ा जाता है। नूह द्वारा अपने पिता को बताने की धमकी देने के बाद ब्रैंडन उसे मार देता है। अगली सुबह टोरी और काइल ब्रैंडन को नूह की मौत के बारे में बताते हैं, जिसे पुलिस दुर्घटना मानती है, लेकिन ब्रैंडन कोई भावना नहीं दिखाता। उसे हत्यारा होने का संदेह करते हुए काइल ब्रैंडन की खून से सनी शर्ट पाता है और उसे टोरी को दिखाता है, लेकिन वह इस पर विश्वास करने से इनकार कर देती है। काइल ब्रैंडन को जंगल में पिता पुत्र के शिकार की यात्रा पर ले जाता है। वह अपनी शिकार राइफल से ब्रैंडन को गोली मारने और मारने का प्रयास करता है, लेकिन गोली ब्रैंडन के सिर के पीछे से उछल जाती है। इसके बाद ब्रैंडन हीट विजन से काइल को मार देता है। एक शेरिफ ब्रेयर्स के घर आता है और टोरी को एरिका और नूह की मौत के दृश्यों पर पाया गया प्रतीक दिखाता है। टोरी को ब्रैंडन की नोटबुक मिलती है जिसमें उसकी हत्याओं के चित्र हैं, वही प्रतीक जो शेरिफ को दोनों हत्याओं में मिला था, और उसका संदेश दुनिया को अपने कब्जे में ले लेना है। वह काइल को बुलाती है, लेकिन ब्रैंडन जवाब देता है और संकेत देता है कि वह उसके लिए आ रहा है। ब्रैंडन वापस आता है और घर को नष्ट करना शुरू कर देता है। टोरी 911 पर कॉल करती है, लेकिन ब्रैंडन बैकअप के पहुंचने से पहले ही शेरिफ और उसके डिप्टी को मार देता है। ये याद करते हुए कि जहाज का पतवार उसे काट सकता है, टोरी खलिहान की ओर भागता है और एरिका के शरीर को खोजता है। जैसे ही ब्रैंडन उसका पीछा करता है, टोरी उसे जहाज के एक टुकड़े से मारने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसे पकड़ लेता है और उसे कई हजार फीट की ऊंचाई से नीचे गिराकर उसकी मौत के घाट उतार देता है। उसे गिरते हुए देखने के बाद वह एक आने वाले हवाई जहाज को देखने के लिए ऊपर देखता है। अगली सुबह हवाई जहाज के फार्म हाउस में दुर्घटनाग्रस्त होने का पता चलता है, जिससे पिछली रात की हत्याओं के सबूत नष्ट हो जाते हैं। विमान के मलबे के एक टुकड़े पर ब्रैंडन का प्रतीक चित्रित किया गया है।
मिड क्रेडिट सीन में ब्रैंडन, जिसे अब ब्राइटबर्न के रूप में पहचाना जाता है, को विभिन्न आपदाओं के स्थानों पर समाचार रिपोर्टों और प्रत्यक्षदर्शी फुटेज के परिप्रेक्ष्य से देखा जाता है। एक ऑनलाइन षड्यंत्र सिद्धांतकार ने आपदाओं का विश्लेषण करते हुए तथा विश्व में अन्य स्थानों पर अन्य क्रिप्टिड्स द्वारा किए गए हमलों का संदर्भ देते हुए अपना वीडियो पोस्ट किया है तथा जनता से आग्रह किया है कि वे इन प्राणियों द्वारा उत्पन्न संभावित खतरे को पहचानें तथा बहुत देर होने से पहले कार्रवाई करें।